Hello students, Namaste. Hope all of you are well. Actually, this COVID-19 had affected all over the globe, not only India, but show must go on. So, in the previous video, I had explained you about atomic mass, formula mass, and other things. And I had promised you that in this video, I'll explain you about the mole concept. See, I will not take you too long, but before starting the video, we must understand why mole concept, when mole concept, and for what mole concept, right? Actually, in the previous video, some of the students were having doubt. I have cleared all the doubts, and if you are still having any doubt about the previous video or this video, then please drop your doubt into the comment box section so I will be able to know. As one of the student was having a doubt of difference between the Avogadro law and Gay-Lussac law, I had explained in the comment box also. And if you are still having doubt about this Avogadro law and Gay-Lussac law, actually this thing is of states of matter which we'll study in 5th chapter. At that time I will explain you in detail. Right now you will not be able to understand, because from that chapter you will be able to know about the constant temperature, constant pressure and constant volume. So you will be able to know. So let's start mole concept. First of all, you can just look at the board and just read at once whatever I had written. Mole. Mole is simply a unit for counting entities at the microscopic level. Means, what is mole? Mole is a simply unit. Mole is a simply unit for counting entities, particles at the microscopic level. Means mole is just a unit to count the small or very tiny particle entities at a microscopic level. What are that microscopic levels? Atoms, molecules, particles, entities, electrons, ions. These are all small entities are atoms, molecules, particles, electrons. So how to measure these all the things? So that's why mole is a simply unit for counting these particles. Got it? Second thing, 1 mole is defined as, this is a very important point if you want to write in your notebook, so you can write also. 1 mole is defined as the amount of substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of the C12. Means if I talk about that, how you will be able to know that how many entities are there in this atom, right? How you will be able to know? So that's why I have written here, 1 mole is defined as the amount of substance, that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 atom. Means they all have taken a relative atoms, and from that they have just desired a characteristics about the mole concept. So they have just informed that how many particles or entities are present in carbon 12 atom, so that particles or atoms will be only 1 mole. So 1 mole was generally defined as the atoms in exactly 12 gram of carbon 12. Means 12 gram of carbon 12 atom they have directly compared, and that time they have told that as number of atoms are present in 12 gram of C carbon 12 atom, so that will be defined as 1 atom. Got it? See, I have cleared each and every doubt about this mole concept. We have to just go through this board, whatever I have written here. So according to that, we will get a concept about a mole. See, in the 9th standard, they have directly told you about the Avogadro number. Avogadro number is 6.022 into 10 to the power 23. And we have just remember that number, this number was given by, and it is equal to 1 atom, right? But in this video, especially about the class 11 standard, we are going to learn in detail, and this thing will happen only if you just focus whatever I am saying. कहने का मतलब कि अगर हमने 9th स्टैंडर्ड में जो भी कुछ पढ़ा है, जस्ट कुछ देर के लिए उसको ब्लैंक कर दो, that you don't know anything. Now we are going to start and you will know the concept. Yes, whatever we have learned in 9th standard, that was right or wrong. That was right, but it was at the basic level. मतलब शुरुआती स्तर में जैसे होता है, that was that. But now we are going to discuss about in the details, right? So here you can see, as I have written, the amount of substance that contains as many particles or entities as there are atoms in exactly 12 gram of carbon 12 atom. Means जितने
C12 एटम, 12 ग्राम C12 में जितने एटम्स होंगे वही एक, मतलब जितने एंटिटीज होंगे वही एक एटम होगा। द मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। इसके बाद जो मैंने ये दो लाइन लिखा है, ये कैसे पता चलेगा कि आखिर एक मोल क्या है? तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है द मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज। जो मोल होता है, जितना ग्राम सब्सटेंस उसका सेम नंबर एंटिटीज होता है। द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम वाज डिटरमाइंड बाय अ स्पेक्ट्रोमीटर एंड फाउंड टू बी इक्वल टू 1.992648 into 10 to the power minus 23 ग्राम। जब कार्बन 12 एटम के अंदर में, अभी तो बहुत सारे टेक्निकल टूल्स आ गए हैं जिससे आप मेजर कर सकते हो कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बट जब कार्बन 12 एटम्स को देखा गया तो कार्बन 12 एटम में देख लो आप कि आखिर जब उस समय स्पेक्ट्रोमीटर से फाउंड किया गया कि कितने ग्राम इसका एग्जैक्ट वजन है कार्बन 12 का, तो वहां पर स्पेक्ट्रोमीटर से इन लोगों को पता चला कि एग्जैक्टली इट इज इक्वल टू 1.992648 into 10 raised to minus 23 ग्राम। सो जैसे ही ये पता चला कि 1 मोल कार्बन जो 12 ग्राम हम लोग कहते हैं, 12 ग्राम कार्बन जो C12 वाला, उसमें इतने ग्राम है 1.992648 into 10 to the power minus 23 ग्राम। तो जब ये वैल्यू हमें पता चल गया कि कार्बन 12 ग्राम में कितने हमारे एंटिटीज है या कितने हमारे मोल्स है, तो यहाँ पे पता चला कि इतना ग्राम के बराबर है। The mass of carbon 12 was determined by spectrometer and found to be equal to 1.992648 into 10 raised to minus 23, knowing that 1 mole of carbon weighs 12 ग्राम। तब पता चला कि ये जो है एक मोल कार्बन 12 ग्राम में इतने ग्राम होते हैं। The number of atoms in its equal to, अब देख लीजिए 12 ग्राम पर मोल कार्बन 12 में 1.992648 into 10 raised to minus 23 ग्राम। जब इसको डिवाइड किया गया 12 को 1.992648 into 10 raised to minus 23 ग्राम, तब हमें जाकर के एग्जैक्ट वैल्यू मिला था 6.022137 into 10 raised to 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। याद रखना बच्चों, ये जो वैल्यू है इसी से हमें मिला कि आखिर ये एवोगैड्रो नंबर ये कहां से आपको फाउंड हुआ, कोई पूछेगा फ्रॉम वेयर यू हैव गॉट दिस नंबर 6.0221367 into 10 to the power 23. So you can just give the answer about these three lines. The mass of carbon 12 atom was determined by spectrometer and found to be equal to 1.992648 into 10 raised to minus 23 gram. So 1 mole of carbon weighs 12 gram. So therefore the number of atoms will be equal to 12 gram upon 1.992648 into 10 raised to minus 23 gram. तो ये जो वैल्यू हमें मिला यही हमारा था एवोगैड्रो नंबर। This number is given by a separate name and symbol known as Avogadro constant, जिसको हम लोग Na से डिनोट किया गया। और स्पेशली अगर हम बात करें इनके जो फाउंडर हैं, उनका पूरा नाम है एमिडो एवोगैड्रो, जिनके रेस्पेक्ट में इसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस 1 मोल। तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हो अपने नोटबुक में, अदरवाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। I hope all of you have written in your notebook or you have taken a screenshot, right? अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब जो नया टॉपिक है हमारा मोलर मास, और यही दो, एक हमारा मोल कंसेप्ट का ये कैसे आया 6.022 into 10 raised to 23 और दूसरा मोलर मास, ये दो अगर आपको आ गया मीन्स होल मोल कंसेप्ट इज इन योर हैंड। ये दो चीज का समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप लोग अगर हो सके तो इसको रिवाइज कीजिए, और एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक ये पूरा कंटेंट आपको समझ में नहीं आता है उसको पढ़ने की कोशिश करिए। क्या होता है कि आपको लोगों को लगता होगा कि सर ने क्या लिख दिया, तो जब तक आप उसकी डिटेल में नहीं जाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर कैसे आया ये नंबर, कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, कैसे यहाँ पे तो ये स्पेक्ट्रोमीटर को कैसे फाउंड, मतलब इतना ग्राम या इतना वैल्यू मिला। तो ये सारी चीज़ें जब आप डिटेल में जाओगे, 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। अब जो हमारा नया टॉपिक है मोलर मास। अब आप बताइए मोलर मास किसको है? मोल तो आपने समझ गया, राइट? अब मोलर मास किसको कहोगे? Anybody know about the molar mass? 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को शायद सिखाया गया होगा, शायद, कंफर्म नहीं, बट मोलर मास के बारे में शायद चर्चा
क्योंकि वहीं से जो है आप लोगों का नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना होता था और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते थे एवोगैड्रो नंबर से, पता चलता था इतने ग्राम में इतने एटम्स। तो मोलर मास का डिफाइन किसी को पता है? व्हाट इज मोलर मास? एक लाइन में मैं आंसर बताऊंगा व्हाट इज मोलर मास, सिर्फ एक। सिंपल आंसर ऑफ मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम। द मास ऑफ 1 मोल, the mass of 1 mole of a substance in gram is called molar mass। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल का जो मास होगा, अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग मोलर मास कहते हैं। अब आप लोगों को डिफाइन लिखना है पहले मोलर मास का, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चलिए तो आप लोग लिख लीजिए व्हाट इज मोलर मास। तो यहां पे मैंने लिखा है द मास ऑफ 1 mole of substance, the mass of 1 mole of a substance in grams is equal to its molar mass। कैसे पता चलेगा कि आखिर किसको कहेंगे हम लोग मोलर मास? तो किसी भी मॉलिक्यूल का या एटम का जो भी वेट है उसको हम अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो उसका मोलर मास हो गया। जैसे एज फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? 23। तो 23 को अगर हम 23 ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो वह सोडियम का मोलर मास कहलाएगा। गॉट इट? So that's why I have written here the mass of 1 mole of a substance in gram. The mass of 1 mole of substance in a gram is called molar mass. The molar mass in gram is numerically equal to atomic mass, molecular mass, formula mass in unit। अब देखो क्या होता है, याद करो जब मैंने आपको बताया था मोलिकुलर मास हम लोग AMU एटॉमिक मास यूनिट, उसके बाद मैंने आपको बताया था मोलिकुलर मास, फिर मैंने आपको बताया था फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स के लिए। प्रीवियस वीडियो में जब आप लोग जाकर के देखोगे डिटेल से एक एक वर्ड को सुनना तो आपको पता चलेगा सर ने जो भी डिस्क्राइब किया था उसके बाद का जो टॉपिक डिस्क्राइब कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड है। क्योंकि केमिस्ट्री सीधे ये मत समझना कि मतलब एक वीडियो खत्म हो गया तो उसका दूसरे से रिलेटेड नहीं। इंटायर केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी एटम्स। So remember dear students, whatever you are studying in chemistry, please write those things, keep that words in your mind, so whenever you correlate these things, so you will get exactly the exact value। Got it? So let's start। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही बताया कि अगर किसी भी एलिमेंट का मुझे मोलर मास निकालना है तो उसका एटॉमिक मास या फिर मोलिकुलर मास या फॉर्मूला मास का जो यूनिट में हम लोग लिखते थे एटॉमिक मास यूनिट, उसको यहाँ पर हम लोग ग्राम में लिखेंगे। तो ये हमारा ग्राम मोलर मास जो है वो ग्राम में रिप्रेजेंट, किसी भी एटॉमिक मास को या फिर मोलिकुलर मास को या फिर फॉर्मूला मास को हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका मोलर मास कहलाएगा। गॉट इट? अब आ जाइए, ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। अब ये मोल्स ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ये जो नंबर ऑफ मोल्स है कि कितने मोल है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि आखिर 23 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स, 23 ग्राम सोडियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स, आपको अगर ये पता करना है तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिख देना है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो सबसे पहले सोडियम का मोलर मास कितना होगा, सोडियम जो एटम है एटॉमिक मास कितना होगा उसका, एटॉमिक मास हो जाएगा 23 ग्राम, राइट। मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम गिवन जो हमें दिया गया 23 ग्राम, तो 23 ग्राम अपॉन 23 ग्राम, सो द नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1। अब जो हम स्टार्ट करेंगे यही हमारा मेन कंसेप्ट होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। अब ये नंबर ऑफ मोल्स जो है यहाँ पर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम जो भी आपका मास दिया रहेगा 30 ग्राम 40 ग्राम 50 ग्राम गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये मोलर मास सब्सटेंस में एटॉमिक मास भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है, आयनिक मास जिसको फॉर्मूला मास कहते हैं वो भी हो सकता है। तो याद रखना जब कभी हम लोग ये नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो ये वैल्यू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ये हमें दिया रहेगा, ये गिवन वैल्यू होगा और ये आपको किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो आपको आना चाहिए, उसको ग्राम में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। और नंबर ऑफ मोल्स जब हमारा निकल जाएगा तो अब एक इजी सा है, अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालना है बस उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना होता है एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23। अगर मान लीजिए मैंने अभी आपको पूछा कि 23 ग्राम सोडियम में
कितने नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो यहाँ पर ये गिवन मास है 23 ग्राम। पहले फॉर्मूला लिख दोगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास ऑफ सब्सटेंस हमारा दिया गया है 23 ग्राम, और सोडियम का एटॉमिक मास भी होता है 23, तो मोलर मास हो जाएगा 23 ग्राम। 23 ग्राम अपॉन 23 ग्राम 1, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 1। अब इस 1 को क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। एवोगैड्रो नंबर मींस 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। तो अब आपको कोई पूछेगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होते हैं, तो 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स होते हैं। गॉट इट। अब हम 2-4 पहले न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये लिखना है तो अपने नोटबुक में लिख सकते हो, अदरवाइज इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स बनाना। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम। आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस वर्ड पर ध्यान देना, हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे पहले mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of nitrogen is equal to gram atomic mass of nitrogen। मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो मास कितने का है, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन का देख लो, यहाँ पे मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, इतने एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। राइट, मैंने क्या बताया था आपको इससे पहले, ग्राम एटॉमिक मास हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमारा नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 है। 14 एटॉमिक मास यूनिट, तो इसको हम लोगों ने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ये 14 ग्राम हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ 1 एटम। एक एटम में नाइट्रोजन कितना ग्राम है, एक एटम में नाइट्रोजन कितना ग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन in grams. What you have to calculate, mass of 1 atom, mass of 1 atom of nitrogen in grams. You have to calculate mass of 1 atom of nitrogen in grams. So that's why I have written here mass of 1 atom is equal to gram atomic mass upon Avogadro number, because Avogadro number into atoms of nitrogen is equal to gram atomic mass। बात समझे कि नहीं समझे। ये जो होता है एवोगैड्रो नंबर हमारा मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 इनटू एटम्स ऑफ जो भी हमारा एलिमेंट है, ये किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के। तो जिस एलिमेंट का भी हमें ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, इसका फॉर्मूला सीधा सीधी हो जाएगा, ये मास ऑफ 6.022 इनटू एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अभी देख लो यहाँ पे मास ऑफ 1 एटम हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 14 ग्राम। तो हमारा ये हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 into 10 to the power 23। अगर 14 को आप इतने से डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू 2.32, और ये 10 to the power 23 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट का, सबसे पहले अगर आपको एक एटम का मास निकालना है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अगर यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन का पूछा था, राइट, अब मैं आपको यहाँ पर लिथियम का पूछता हूँ। चलो, लिथियम जानते हो, एटॉमिक नंबर 3, Li से हम लोग डिनोट करते हैं 3, और एटॉमिक मास 7 होता है। गॉट इट। तो अब आपको क्या लिखोगे यहाँ पे, अगर आपको लिथियम का निकालना है तो मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ लिथियम
इज इक्वल टू, सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं है हमारा, बस खाली हमें समझना है। देखो अगर मुझे निकालना है कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7 इन ग्राम्स, so mass of 6.022 into 10 to the power 23 atoms of lithium is equal to gram atomic mass of lithium। lithium का atomic mass 7 होता है, राइट, तो 7 ग्राम हो जाएगा। अब फॉर्मूला मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, तो 7 g मतलब 7 ग्राम 6.022 into 10 to the power 23। तो अगर 7 को 6.022 से डिवाइड करोगे तो आई होप 1.022 ये हो जाएगा आपका, वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी डिवाइड इट। वन 1.12 इंटू 10 to the power 23, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपको मास ऑफ वन एटम निकालना है तो क्या करना है, ग्राम एटॉमिक मास बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइड करके जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आप लिख दोगे। हाँ, 2 डिजिट तक, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखाया साइंटिफिक फिगर में भी, पॉइंट के बाद जनरली 2 या 3 डिजिट तक जहां तक भी आपको लिखना है 2 डिजिट जनरली लिखते हैं लोग कि 1.12 इंटू 10 to the power 23। हाँ, ये 23 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये 23 यहाँ पे प्लस था, ऊपर गया तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो अब हमने देखा कि मास ऑफ वन एटम हमें कैसे निकाल, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। अब क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, अब हमें दूसरा क्वेश्चन बनाना है। अब कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला CH4, CH4 क्या होता है, CH4, CH मतलब कार्बन, H हाइड्रोजन, 4 एटम है। तो अब आपको सबसे पहले मोलर मास इसका निकालना पड़ेगा। जैसे ही आपको मोलर मास निकालोगे तो मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना मास होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 है हमारा हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो जाएंगे 16। मोलर मास ऑफ CH4 इज 16। मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecule of CH4। क्या लिखेंगे, मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecule of CH4। तो मोलर मास ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ CH4, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 into 4, तो टोटल 16 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। मोलर मास हमारा ग्राम में होता है, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पर कितना आ गया 16 ग्राम। अब हमें क्या फाइंड करना है, वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन का मास फाइंड करना है। तो सबसे पहले याद रखना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, मैंने पहले भी बताया है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे प्रीवियस में GAM/Na ग्राम एटॉमिक मास, जो यहाँ पे हम लोगों को ग्राम नहीं है तो मोलर है, तो मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास कितना है यहाँ पे 16 ग्राम, एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23। अब अगर आप डिवाइड करोगे 16 को तो आई होप 2.65 ऐसा ही कुछ आएगा, 2.65 into 10 to the power 23, 2.65 और 10 to the power 23 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 to the power -23। गॉट इट। तो यहाँ पर जैसे ही आपने देखा कि हम लोग सबसे पहले मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन का ग्राम में निकाले, उसके बाद मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन का निकाला। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस मैं आपको दूं तो क्या आपसे निकल जाएगा, अगर नहीं तो पहले सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए नोटबुक में, उसके बाद मैं आपको
वन बाय वन निकालना सिखाऊंगा कैसे हमें निकालना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3.9 ग्राम ऑफ पोटाशियम। क्वेश्चन लिखो सब लोग। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3.9 ग्राम ऑफ पोटाशियम। Calculate the number of atoms present in 3.9 gram of पोटाशियम। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 और मास नंबर 39, राइट 1939, राइट। याद रखना ये सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद रखना है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3.9 ग्राम ऑफ पोटाशियम। तो क्या सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ग्राम एटम निकालना है। ग्राम एटम इज इक्वल टू वेट ऑफ एटम इन ग्राम बाय एटॉमिक मास। ग्राम एटम क्या हो जाएगा, ग्राम एटम इज इक्वल टू वेट ऑफ एटॉमिक, जो हमारा एटम है वेट ऑफ एटम इन ग्राम बाय एटॉमिक मास। वेट ऑफ atom in gram by atomic mass। वेट ऑफ एटम इन ग्राम कितना दिया हुआ है 3.9 ग्राम दिया हुआ है, 3.9 ग्राम। और एटॉमिक मास कितना होता है 39, राइट। वहां पे देख लीजिए मैंने लिखा भी है पोटाशियम का 19 और 39। तो अगर आप डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 3.9 है तो नीचे अगर 10 डाल दीजिए तो 0.1 ग्राम, राइट 0.1 ग्राम। Since 1 mole gram contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms, therefore 0.1 gram contains 6.022 into 10 to the power 23 into 0.1 atoms। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 मतलब 1/10 तो एक हट जाएगा 6.022 into 10 raised to 22 एटम्स हो जाएगा। गॉट इट। इसको नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद मैं 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ऐसे ही बनाना है, राइट। तो अभी हमने देखा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3.9 ग्राम ऑफ पोटाशियम। ग्राम एटम इज इक्वल टू वेट ऑफ एटम इन ग्राम बाय एटॉमिक मास। 3.9 ग्राम बाय 39 इज इक्वल टू 0.1 ग्राम। 1 मोल contains 6.022 into 1 gram mole contains 6.022 into 10 to the power 23 atoms. So therefore 0.1 gram mole contains 6.022 into 10 to the power 23 into 0.1, that is equal to 6.022 into 10 to the power 22 atoms. Got it? I hope all of you have written. सेम मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा चेंजेस कर दे रहा हूं जो आपको खुद से निकालना है। यहां पर मैं 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम, 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, मास नंबर 23। गॉट इट। अब इसको आपको निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। होगा आप लोगों से? आई होप हो जाएगा। बस क्या करोगे आप लोग, बस सीधा सीधी कुछ नहीं, जहां जहां 3.9 और 39 दिया था बस इसको चेंज कर देना। तो हमारा वेट ऑफ एटम इन ग्राम कितना है 4.6 ग्राम और हमारा सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23। इसको पॉइंट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा 46/23 into 10 ग्राम। 23 टू जा 46, 2/10 कितना हो जाएगा 2/10 इज इक्वल टू 0.2 ग्राम, राइट। तो 1 ग्राम मोल कंटेन्स इतना आइटम्स
तो 0.2, तो इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे 6.022 को तो 12.044 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.044। 0.2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। क्या हो जाएगा? 16 टू 12, 044 इंटू 10⁻93। समझ में आया? अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स और जो गिवन मास है हमारा, जैसे इसमें मैंने आपको दिया था 4.6 ग्राम, ऐसे ही टाइप के अगर क्वेश्चंस दिया रहे तो आप लोग इजीली बना लोगे। इसके साथ जो मैं वर्कशीट भेजूंगा उसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन भेजूंगा, जो आपको बस यही फॉर्मूला पे 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अभी तक तो हमने नंबर ऑफ एटम्स के बारे में देखा, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग चलेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर नोटबुक है तो आप लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, मास नंबर 32। तो अब क्या निकालोगे आप? सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूल, जैसे उसमें हम लोगों ने ग्राम एटम निकाला था, तो इसमें क्या निकालेंगे हम लोग? ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसमें याद करो, उसमें हम लोगों ने लिखा था वेट ऑफ एटम इन ग्राम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, weight of molecule in gram by molecular mass, by molecular mass। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम कितना दिया हुआ है? 3.2 ग्राम। अब आ जाइए मॉलिक्यूलर मास, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? सल्फर का मैंने बताया आपको 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 इंटू 2, 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 64, राइट। ये इसका मोलिकुलर मास हो गया, तो 3.2 अपॉन 64, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 32 अपॉन 64 इंटू 10, 1/20 इज इक्वल टू 0.05 ग्राम, राइट। 0.05 ग्राम। अब 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन्स, क्या लिखोगे? 1 gram of molecule contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules, right? 1 gram of molecule contains 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Therefore, 0.05 gram molecules contain 0.05 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules। यही हमको निकालना है, मतलब ये 5/100 कर दीजिए, 5/100 into 6.022 10 to the power 23। 23 के बदले क्या कर दो आप यहाँ पर? देखो 2 0 चला जाएगा तो 21 हो जाएगा, और 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, 1 6 5 जा 30। तो यहाँ पर देख लो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11 और 6 5 जा 30, 30.110 इंटू 10 टू दी पावर 2 कट जाएगा, 21 मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल। तो हमारा जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसको हम लोगों को मॉलिक्यूल्स में निकालना है। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल में कितने कंटेन होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23, और यहाँ पर हमारा जो ग्राम मॉलिक्यूल निकला है 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू 30 अदरवाइज डू वन थिंग एज आई हैव टॉट यू, इसको आप एक और चीज में कर सकते हो कि 3.01 कर दो। क्या करोगे? 3.01 कर दो इसको, 3.01, क्योंकि मैंने आपको बताया है
याद कीजिए साइंटिफिक नोटेशन और साइंटिफिक फिगर्स में हमें क्या करना है, एक डिजिट के बाद ही पॉइंट डालना है। तो 3.01 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 21, राइट। समझ में आया या नहीं आया? देख लीजिए आप लोग, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आपको ऐसा लग रहा है 6.022 इंटू 5 तो 31 पॉइंट होता है, 31 पॉइंट, करेक्ट। तो यहाँ पर ये 20 हो जाएगा, क्योंकि आंसर हमारा कितना आया था 30.1 इंटू 10 टू द पावर 21, राइट। और इसको हमने एक आगे और लिया है, राइट। तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 हो जाएगा सर। देखो यहाँ पर जब भी आप कैलकुलेट करो तो बस एक चीज ध्यान में रखना है कि 10 का जो रेस टू है, जो पावर है, उसे ध्यान में रखना है। देखो आपको यहाँ पर 5/100 था इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। कुछ नहीं करना, आप मल्टीप्लाई करो आप। तो इसका हो गया था आपका 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 11, 1 30.11 इंटू 10 टू द पावर 21। अब मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.0110 इंटू 10 टू द पावर 22, ये मेरा आंसर हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आया? इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन दूंगा, बन जाएगा आपसे। इसके बाद एक और पॉइंट लिखना है आपको, मॉलिक्यूलर मास 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल। इसके बाद क्या लिखना है 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, देयरफॉर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल। अब हम लोगों को ग्राम आयंस वाला निकालना है। आई होप आप लोग समझ रहे हो। तो इसको नोटबुक में आप लोग लिख लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब एक नया क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट। आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन जो है हमारा एज अभी जस्ट हमने लिखा था, याद आया कुछ? जस्ट हमने तुरंत बनाए थे इससे पहले मॉलिक्यूलर मास वाला। क्या लिखोगे, वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, वेट ऑफ मॉलिक्यूल या फिर वेट ऑफ molecular in gram, number of moles is equal to weight of molecular in gram by molecular mass, by molecular, got it? तो कितना दिया हुआ है 4.9 ग्राम। अच्छा एक बार सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास H2SO4, राइट। हाइड्रोजन का कितना होगा 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98। यस 98 कितना हो गया 98। डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 49/98 इंटू 10, 49 2 98, 1/20 कितना होगा 1/20 इज इक्वल टू 0.05 और 0.05, राइट। कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.05। गॉट इट? समझ में आया या नहीं आया? देख लो यहाँ पे
how many moles of sulfuric acid H2SO4 are present in 4.9 gram of H2SO4? सीधा सीधी हमें कुछ नहीं करना है, बस नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. वेट ऑफ मोलिकुलर इन ग्राम बाय मोलिकुलर मास 4.9 ग्राम बाय 98 ग्राम डिवाइड किया 0.04 नंबर ऑफ मोल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो आप लोग. कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम. कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम. चलो तो क्वेश्चन लिखा आप लोगों ने, कैलकुलेट द एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम. तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 into 2 plus 16 is equal to 18 एटॉमिक मास यूनिट. क्योंकि यहां पर कैलकुलेट एक्चुअल मास पूछ रहा है, राइट? एक्चुअल मास में हम लोग क्या यूज करेंगे? एटॉमिक मास यूनिट यूज करेंगे. अब आ जाइए, वेट ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water. Weight of 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water कितना होगा? इज इक्वल टू 18 ग्राम. होगा या नहीं होगा? वेट ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water is equal to 18 ग्राम. तो हमें निकालना क्या है? एक्चुअल मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम, राइट? तो हमारा वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? देयरफॉर ये क्योंकि वेट ऑफ 6.022 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18 ग्राम है, तो देयरफॉर वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, यही हमें निकालना है. वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर is equal to 18 divided by 6.022 into 10 to the power 23. बताइए कितना होगा वैल्यू? 18 को अगर हम अप्रोक्सीमेटली 3 या 2.99 लिख दो, 2.99 into 10 to the power minus 23 ग्राम, राइट? माइनस 23 ग्राम. तो आप लोगों ने देखा कि आखिर ये पूरे मोल कंसेप्ट में हमें क्या सब निकालना है. कुछ मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हमें सॉल्व करना है. सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है. नंबर ऑफ मोल्स, वेट इन ग्राम एटॉमिक, जो भी दिया है, वेट इन ग्राम बाय एटॉमिक मास, वेट इन ग्राम बाय मोलिकुलर मास, वेट इन ग्राम बाय आयनिक मास, इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. उसके बाद अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. अदरवाइज नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो वो भी नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा कुछ भी निकल जाएगा, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, एंटिटीज हो, पार्टिकल्स हो, कुछ भी हो, वो इजीली निकल जाएगा. तो आई होप आज का ये मोल कंसेप्ट का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा होगा देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज ड्रॉप योर डाउट इनटू द कमेंट बॉक्स सेक्शन, सो आई विल सॉल्व योर ऑल द डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप ऑल ऑफ यू हैव. अगर आपका कोई फ्रेंड मान लो मिस कर रहा है देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब.